मोर आई वुड लाइक टू टेल, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं अलग अलग मीडियम्स पर, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फेसबुक वालों का भी स्वागत, यूट्यूब वालों का भी स्वागत, इंस्टाग्राम वालों का भी स्वागत, लक्ष्मी इन्फोटेक एंड एजुकेशन पॉइंट, एजुटेक गुरु, उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु के सभी व्यूअर्स का, सभी मित्रों का, इस दुनिया के सभी फ्रेंड्स का, जितने भी लोग मुझसे गाइडेंस लेते हैं, जितने लोगों का मुझ पर प्यार आशीर्वाद बना रहता है, सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। As far as the question is that why should we celebrate it over there, we should celebrate over there, the reason being that we have not got this freedom free of the cost. Any freedom is not got free of the cost. Any freedom is not got free of the cost. We have to pay for it. Not only we, our forefathers, our many old people, our relatives, maybe if we see in our India, majority of the people have given their life, they have sacrificed their life over there. So that's why this independence is not so simple. This independence we have got over there, this is not so cheap. This independence is very very costly, precious and priceless independence we are enjoying over there. Again, I would like to tell you from Umesh Aroda English Guru, happy independence to all of you. And let us start it now. I would like to tell the name of the students. Many students have been connected with me. Happy Independence Day. I would like to wish Abhishek Saini, I'm getting by the name of Alka Sharma, Amnapreet Singh, Vig, Anurag Malik, Jas Kaur, Khushi, Hemant Sharma, Komal Khetarpal, Lakshay Verma, Muskan Rana, Nitin Kumar, Pragya Sharma, Pranav Goyal, Rajan Gupta, Rajinder Kumar, Vansh Kashyap, Raman Chauhan, Sania from Mustafabad, Sanjeev Kumar, that is Nidhi Chahal, Jashan, Shivani Chauhan, Sushil Chauhan, Shivani, by the name Sunita Devi, Suresh ji, Manager Canara Bank, Simran, Surjit ma'am. Welcome all the respected people over there with us, the elder people to me, Vedant, Nasir Hussain, Zahir Hussain. Welcome to all and happy Independence Day to all of you. The reason is that we have got this independence. This is very very costly. Now we are going to start over there along with the presentation over there. Along with the presentation we are starting now, and now I am going to present the screen. You are advised to please share. Please stop sharing anyone and please mute everyone. And I am going to share my screen. Please mute everyone. You have to just listen. Theory of success. The rules of success I am going to discuss with you. Last time I have discussed approximately 25 rules with you, and right now it is the time that I have to go to discuss some more rules with you. The next point I am going to discuss with you. Is 26th point I had started with you, that is don't have expectations. What is the meaning of this line? The meaning of this line is that don't have expectations means कि कभी भी कोई भी expectations मत रखिए किसी से. More and more the expectations we have, more and more we are feeling problems. हम जितनी ज़्यादा expectations रखते हैं, हम उतनी ज़्यादा ही समस्याओं में आते हैं. दोस्तों, मैं आपको पुनः बता दूं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ सक्सेस. हम थ्योरी ऑफ सक्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं. किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखकर, किन पॉइंट्स को हम अडॉप्ट करके सक्सेस की तरफ जो है अग्रसर होते हैं, सक्सेस की तरफ हम लोग चलते हैं. हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो दोस्तों, अब ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास आता है जो हमारी रूटीन लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हमारी मैरिज लाइफ में, हर जगह पर हमारे काम आता है. दैट इज़ डोंट हैव एक्सपेक्टेशन. हमें कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. ज़्यादातर लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से, जिसकी वजह से खुद वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते. खुद वो इंडिपेंडेंट नहीं होते. खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाने की वजह से, खुद इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से वो अपनी उस प्राण शक्ति को, उस कार्य शक्ति को खो देते हैं जो कि उनको दी गई थी परमात्मा की तरफ से. उसको खो जाने की वजह से वो परिस्थितियों के साथ स्ट्रगल नहीं कर सकते. पंडित श्री राम शर्माचार्य ने एक बात बोली, वी आर नॉट क्रिएचर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, वी आर क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. हम परिस्थितियों के वश में दास नहीं हैं. हम लोग परिस्थितियां खुद निर्माण करते हैं. हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही बनते हैं. तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन मत रखिए. यहाँ पर मेरे माइंड में एक कहानी आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी है. मैं 1 मिनट में इस कहानी को, स्टोरी को कंप्लीट करूँगा. एक बार एक राजा था. राजा के दरबार में एक बार ये प्लानिंग बनी कि हम लोग फील्ड में जाते हैं और हम एक बार फील्ड में जरा नगर का दौरा करके आते हैं. खूब सर्दी थी.
सर्दी के मौसम में राजा साहब अपने स्टाफ के साथ निकले और उन्होंने जाके देखा, कहते कि मैं सभी की समस्याएं नोट करूंगा कि किस किस व्यक्ति की क्या क्या समस्या है, मैं सभी की समस्याएं नोट करूंगा, किस किस व्यक्ति की क्या क्या समस्याएं है और उनका निराकरण करूंगा, एंड आई विल बी सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, राजा साहब तो गए, वहां पर एक फकीर बैठा दिखाई दिया जो बहुत ठंड से ठिठुर रहा था, उसके पास कंबल नहीं था, लेकिन राजा साहब भी कंबल अपने साथ नहीं लेकर आए थे, उनको आइडिया नहीं था कि किसी के पास कंबल नहीं होगा, ब्लैंकेट नहीं होगा। देन व्हाट हैपेंड, राजा साहब ने सोचा, राजा साहब ने अपने मंत्री को बोला कि इसको आप नोट कर लो और इनको जो है कंबल पहुंचाना है, फ़कीर ने उत्तर दिया कि महाराजा साहब कंबल मैं क्या लेकर करूंगा, ब्लैंकेट मैं क्या लेकर करूंगा, क्योंकि मैं तो वैसे ही ठंड में रहता हूं, कोई नहीं ठिठुर रहा हूं। राजा साहब बोले नहीं, तू मेरी प्रजा का पार्ट है, मैं तुझको जरूर ब्लैंकेट भिजवाऊंगा। कैन यू एवर इमेजिन, वो फ़कीर जो कि इतने सालों से हर प्रकार की सर्दी को झेलता हुआ आज तक जीवित था, वो उसको लगा कि हाँ राजा साहब कंबल भिजवाएंगे, ठीक है। ही केप्ट वेटिंग फॉर द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट की वेट करता रहा, जैसे जैसे वो ब्लैंकेट की वेट करता रहा वैसे वैसे रात बीतती रही, लेकिन राजा के दरबार से कोई भी ब्लैंकेट देने के लिए नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि उस किंग ने, उस राजा ने ब्लैंकेट नहीं भेजा होगा, आई एम श्योर कि किंग ने ब्लैंकेट जरूर भेजा होगा, लेकिन वो उस फ़कीर तक पहुँचा नहीं। रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, फ़कीर ठिठुरता रहा, ठंड में ठिठुरता रहा, सोचता रहा कि राजा साहब ब्लैंकेट भेजेंगे, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, धीरे धीरे उसकी जो है एक्सपेक्टेशन जो बढ़ गई थी ना, वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे टूटने लग गई। और जैसे जैसे वो एक्सपेक्टेशन टूटने लगी, फ़कीर को ठंड और ज़्यादा लगने लगी। जैसे जैसे उस फ़कीर को ठंड ज़्यादा लगती गई, वैसे वैसे वो फ़कीर जो है मृत्यु की तरफ जो है अग्रसर होता रहा। लेकिन जब उसके पास सुबह 6 बजे सहायता पहुंची, एक सैनिक जो है ब्लैंकेट लेकर पहुंचा, तब तक वो फ़कीर अकड़ा हुआ मिला, वो ठंड की वजह से मर चुका था, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन रखी थी उस राजा से। हम जब भी कभी किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वेन एवर वी हैव एनी एक्सपेक्टेशन टू एनीवन, जब भी हम कभी किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें हम वो करेंगे, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से ही क्या हुआ करता है, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से वो फ़कीर की मृत्यु हुई। उस एक्सपेक्टेशन की वजह से हम लोग अपने अंदर की जो प्राण शक्ति है ना, हम उस प्राण शक्ति को खो देते हैं। तो डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन। और हमेशा याद रखना, एक किसी व्यक्ति से मैंने बात सुनी कि हमेशा याद रखना, आपकी सफलता के गुब्बारे में पहली पिन चुभाने वाला व्यक्ति आपको कोई अपना ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ब्यूटीफुल लाइन है, एवरीबडी मस्ट लिसन ओवर देयर। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, गली मोहल्ले फ्रेंड सर्कल में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में देखते हैं, जब तक तो आप गरीब हैं, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू। जब तक आप गरीब हैं, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करने लगते हैं तो दे स्टार्ट फीलिंग जेलस टू यू। आपके सभी नियर एंड डियर आपसे जेलस फील करने लगते हैं। इन द सेम मैनर सो मेनी अदर थिंग्स आर आल्सो गोइंग टू बी टेकन प्लेस ओवर देयर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज देयर, वो आपसे जेलस फील करने लगते हैं। एंड व्हाट हैपेंस ओवर देयर, along with that, उसके साथ साथ आप हमेशा ये बात जरूर याद रखिए कि डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स ओवर देयर, आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विद यू। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स ओवर देयर, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज दैट डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। प्लीज राइट डाउन दिस 27th नंबर सेंटेंस। आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ सक्सेस पार्ट 4। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। दूसरों को कॉपी करने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, परमात्मा की तरफ से भेजे गए हैं, बिल्कुल ठीक हैं, एब्सोल्युटली राइट हैं। आप इस परमात्मा की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। आप इस धरती पर भेजी गई सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। तो नेवर ट्राई टू कॉपी अदर्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमारे गली मोहल्ले पड़ोस में क्या हुआ करता है? व्हाट इज हैपनिंग, आवर पेरेंट्स आर पेइंग अटेंशन। हमारे पेरेंट्स इस चीज़ पर खूब ध्यान देते हैं कि पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है। हमारे पेरेंट्स इस चीज़ पर खूब ध्यान देते हैं कि पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, वो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कितने मार्क्स प्राप्त कर पा रहा है, वो स्टडी में कैसा है, क्या है। ही इज़ पेइंग अटेंशन टू दिस थिंग। वो हमेशा और हमेशा इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी के साथ नाउ द क्वेश्चन रेज इज दैट parents pay more attention what others are doing. Child is paying attention, it's okay, that is the healthy competition they are keeping over there. But on the other hand, what parents are doing, parents are also doing it over there, and parents are paying more
अटेंशन एंड पेरेंट्स आर पेइंग मोर अटेंशन टू दिस थिंग। पेरेंट्स इस चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं कि हमारे उस रिलेटिव का बच्चा ये कर रहा है, और इस ऑप्शन पर पहुंचकर हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर मेरे बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं और मेरे पड़ोसी के, मेरे रिश्तेदार के 95% मार्क्स आए हैं, तो उस बच्चे को प्रेशराइज किया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉपी कर रहे हैं। भगवान ने हमें जैसा बनाकर भेजा, हम लोग बेस्ट हैं। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। आपको जैसा बनाकर भेजा, आप अपने आप में एक यूनिक पीस हैं। यू आर द सिंगल पीस ऑफ द वर्ल्ड। यू माइट हैव नोटिस्ड ओवर देयर नेचर एंड बिहेवियर, your qualification, your study, your family culture, your family environment, आप जहाँ पर रहते हैं वो environment, आप हिली एरिया में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका लक क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी ग्रेस्पिंग क्वालिटी क्या है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, आपकी डीलिंग क्या है, हाउ इज़ योर डीलिंग विद द पीपल। हर प्रकार से हर एक चीज़ आपकी अलग है। भगवान ने ये मैसेज देकर हमें भेजा, प्रकृति ने हमें मैसेज देकर भेजा कि आप हर किसी चीज़ से बिल्कुल अलग हैं। आप हर किसी चीज़ से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आप तरफ से मैसेज दिया, तो आप क्यों किसी और को कॉपी करते हैं। यू नीड नॉट कॉपी अदर्स, आप ही हैं। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, आप भगवान की बेस्ट क्रिएशन है, जैसे ही हैं बहुत अच्छे हैं। अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश करो एंड हैव अ पॉइंट कि अपने आप को रोज़ का रोज़ 1% अच्छा करो। आप काम करना शुरू कर दीजिए वेयर एवर यू आर, आप काम करना शुरू कर दीजिए वेयर एवर यू आर, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं। मैं दोस्तों इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो भी एक समय था जब उमेश अरोड़ा ने कभी एक बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया था। एक टाइम पर एक बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया था, आज से सालों पहले। लेकिन क्या पता था वो एक बच्चे से चलते चलते आज इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हज़ारों लाखों दर्शक हमसे जुड़ते हैं, हज़ारों लाखों दर्शक हमारे इन चैनल्स को देखते हैं, और हज़ारों लोगों तक मेरी इस बुक की पहुंच हो चुकी है, और लगभग पूरा इंडिया जो है मेरी लिखी किताब पढ़ रहा है। दोस्तों ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने जर्नी ऑफ 1000 माइल्स जो है एक स्टेप से शुरू की थी। एवरीबडी हैज़ टू डू, तो डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। किसी को भी कभी भी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, परमात्मा की, गॉड की बेस्ट क्रिएशन है। अपने आप को रोज का 1% सुधारो, अपने आप को रोज का 1% सुधारो कि आज मेरा लेवल ये था, टुमारो व्हाट शुड बी आवर लेवल। कुछ ना कुछ सीखने के लिए कीजिए, बट डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। आप जो हैं बेस्ट हैं, दूसरों को कॉपी मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 28 पॉइंट, हैव पेशेंस, परफॉर्म कर्मा। वंडरफुल पॉइंट, लव दिस पॉइंट, आई लव दिस पॉइंट। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंट, perform karmas. Have patience, perform karmas. Lord Krishna also says in Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna also says in Srimad Bhagavad Gita that you must always and always perform karmas. You must always and always do karmas. What is the problem with us? The problem with we people is that, the problem with us is that only we are not having the patience. We are not having the patience. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। मैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपने कभी देखा कि हमने एक पेड़ लगाया और हमने एक प्लांट को ग्रो किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और कुछ महीनों बाद हम ये एक्सपेक्ट करने लगे कि वो प्लांट जो है हमें फ्रूट्स देने लगेगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, इट विल टेक सम टाइम। समय आने पर अवश्य ही उसके ऊपर फल लगेंगे। जिस चीज़ का पेड़ लगा होगा उसी के फल लगेंगे, किसी और चीज़ के फल नहीं लगेंगे। जैसे कर्म किए होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। दोबारा से सुन लीजिए इस सेंटेंस को, जैसे कर्म किए होंगे सेम वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। कोई और ऑप्शन आपके सामने नहीं आने वाली। आपने आम का पेड़ लगाया है, आपको आम ही मिलेगा। आपने एप्पल का ट्री लगाया, आपको एप्पल ही मिलेगा। आपने जिस भी चीज़ का ट्री लगाया होगा, दैट विल बी गिवन टू। लॉर्ड कृष्णा आल्सो सेज इन श्रीमद् भागवत गीता, परफॉर्म कर्मास, परफॉर्म कर्मास, परफॉर्म कर्मास। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अच्छे कर्म कर तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन योर माइंड, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू द कर्मास। हमेशा और हमेशा कर्म कीजिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। समय आने पर अवश्य ही हमारे उस काम पर जो है, जो हमने काम किया, उसका रिजल्ट्स अवश्य ही आने शुरू होंगे।